गाने के बारे में जानना चाहेंगे, कितना मज़ा आ रहा है और किस तरह का गाना है? It's a fun song. It's a very fun party song. It's catchy. Have you heard it? You just heard it. What did you think? So it's a really fun song. It's been sung by Mika, who was a pleasure to work with, and choreographed by Caesar, who I've worked with before. So it was, it was very comfortable, and it was very fun to be back and to be, doing these steps, which are, they were quite catchy and the numbers catchy. So I had a good time. It was a bit tiring because we shot for 2 nights in a row, but worth it. आपको जो अटायर है वो भी काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, उसके बारे में भी This? Yeah. Indian, yeah. So it's it's in keeping with the theme and the vibe of the song, which is Gabru ready to mingle. So I think it was like the perfect outfit, and I felt good in it. So आपको लगता है ये गाना जो है ब्लॉकबस्टर होने वाला है, ये मेन एलिमेंट होने वाला है पूरी फिल्म? I hope so. I mean, the film has a lot of nice music, but different kind of music. This is probably the only like fast, catchy party song, and the rest of the film has more soulful, Sufi, like the one we just released, Tera, Ashik Tera, and there's a lot of other good stuff coming up. But that's a very different genre of music. That's more, slow and soulful and beautiful lyrics, and this is the only party fun song. लव आजकल के बाद जो है एक लंबा ब्रेक हो गया, उसके बाद ये मूवी I didn't do Love Aajkal. वो बंधु सगा तुम्हें सॉन्ग के बाद आप ये गाना करते हैं? Yes. कितना डिफरेंट है दोनों में? Very different. Also because the characters are so different. So the whole approach to the song was different. Meera was a very shy, a quiet character, and that song was part of the script and part of the film. So it was in keeping with that. This is not part of the film per se. It's more right at the end, where everyone's just having a good time and it's like partying or whatever. So it's not sticking to the story in any way, but it is an extension of the character, which, like I said, is very different from Meera. So this is a completely different zone. That was a completely different zone. कॉकटेल के बाद एक लंबा ब्रेक हो गया, उसके बाद ये मूवी आ रही है, तो क्या और प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं? Yeah. I'm going to do more. Don't worry. I'm not going to bhago this time. Sorry. Why did I take a long break? I was actually, I guess there's a right time for everything, and I was kind of waiting for and looking for the right script. I was meeting people, I was reading scripts, but nothing ever clicked. And this was the first script that clicked with me when I felt like it made sense to do this after so long. It made sense to do a film in which the character is completely different from the first one that I did. So it gave me, more to do it. It was a challenge for me, so that's why I wanted to do this. Oh God, I haven't even thought of that. It's like one step at a time. Let's just wait for 19th August. What kind of cinema you want? I'm sorry? किस तरह की सिनेमा के साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं? I have a certain sensibility, and I guess for me it's more like when I read a script, if I really like it and it interests me and excites me, I get bored very easily. So when I read a script and I like it, that's something that I want to watch maybe, and something that I want to read, then I want to be associated with something like that. Also, character-wise, I'd like to play different kinds of roles and not maybe stick to the same thing, because I like to do things that are challenging for me. Otherwise, what's the point of doing the same thing again? Which in the beginning I thought, like after Cocktail, I thought, okay, I'll play the same kind of role because it's safe and I know how to play it and it's very close to me. But then I thought about it, I had so many years to think about it. I thought about it and I said, why not do something completely different? So here I am. आपकी co-stars अभय देओल और अली फजल के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? It was a really good experience because they were. It was a really good experience working with Abhay and Ali because they're both really fine actors, and it was very easy to work with them because you just have to react off of them when you're in a scene with them. So there was a lot to learn, of course, from both of them. Thank you so much. Thank you. Thanks. इसके बारे में कुछ बताइए। गबरू रेडी टू मिंगल ये गाना आई थिंक जब ये आया मैं सुपर एक्साइटेड था. आई वॉज टू मच एक्साइटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज I'm always excited to work with Anand Rai, whether he's producing, directing, because I did Ranjana with him, I did Tannu Weds Mannu Returns with him, and now this, when I saw the trailer, he showed me the trailer much before y'all could see it, so I was super excited. I said, sir ये गलत है, मुझे इसमें आपने गाना नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. So I was very irritated, but I was leaving for Ooty for a Kannada movie, and he called me saying गाना है, करना है क्या?
बोला सर मैं अभी जा रहा हूँ, तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं डोंट वरी आई एडजस्ट द डेट, मिक्का है एंड डायना है। आई वाज टू एक्साइटेड, उन्होंने गाना भेजा, मैं ऊटी में ड्यूरिंग माई शूट उधर शाम को आई वाज रिहर्सिंग, सेट द सॉन्ग, सेंड इट टू हिम, उन्होंने हुक स्टेप सेलेक्ट किया एंड आई प्लान द फुल सॉन्ग एंड फिर अल्टीमेटली उन्होंने मुझे एक बॉम्ब दे दिया कि 2 दिन में शूट करना है। तो मैं डरा हुआ था, लेकिन आई थिंक वी हैव अचीव्ड इट एंड गाना सुपर हिट होने वाला है बिकॉज ऑडियो इज माइंड ब्लोइंग, मिक्का हैज डन अ फैबुलस जॉब, डायना इज लुकिंग सुपर प्रिटी एंड शी इज डांस्ड लाइक अ हैप्पी girl who she's playing the character as. So I think it's going to be overall superb. I'm excited to see it, to edit it and to see the final product. See, this is not the first time I'm working with her. Tumi O Bandhu was my song. So I think as you all know, Bosco Caesar. Bosco is my partner, Caesar, here I am. So Tumi O Bandhu was our song, and after that I think Diana again, after so many years, she's too beautiful and too cute to me to shout at her or to correct her, because anything she does looks very beautiful. So, and her poise, her appearance, there's nothing bad about her, I can say. How do you see her as a dancer? I think I won't say that she's a fabulous dancer, but she knows her job. She knows what exactly to do when and how to perform. She's a performer than a dancer. So I think that's what I like, because being a performer is much challenging than being a dancer. आपको लगता है जब ये गाना रिलीज होगा तो 4 पर्सनल पे टॉप करेगा? आई होप सो। मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन गाना हिट है ऑडियो वाइज। डायना अच्छी लग रही है, मिका ने अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने अच्छा कोरियोग्राफ किया है, अच्छा डायरेक्ट किया है। आई होप पब्लिक को पसंद आया, आई होप एवरीवन लाइक्स इट, आई होप फर्स्ट 5 में तो आए। थैंक यू सो मच। आज शूट किया जा रहा है जी। इसके बारे में बताइए। पहले तो माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से, क्योंकि क्या है 36 घंटे से लगातार काम करने की वजह से इस वक्त मेरी शक्ल कुछ ऐसी लग रही है कि मुझे ये भी नहीं पता कि इस वक्त यहाँ आना चाहिए था कि नहीं, बट ये खुशी मुझे यहाँ पे लाई है कि हमने एक बहुत अच्छा गाना शूट किया है और बहुत अच्छी तरह शूट किया है, और ये मेरा पहला इत्तेफाक था सीज़र साहब के साथ काम करते हुए। वाज ग्रेट फन, ही हैज़ अ ग्रेट टीम, and you know we had opportunity to do lots of different things जो कभी कभी फिल्म में हम कर नहीं सकते, जो थोड़ा सा क्वर्की होता है, नॉटी होता है, तो वो हम अक्सर इन वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो मज़ेदार होते हैं ऐसे शूट। ये गाना क्या प्रमोशनल सॉन्ग भी? देखिए, फिल्म में रिकॉर्ड किया हुआ कोई भी गाना अगर उसकी प्रमोशन का हिस्सा बने तो वो प्रमोशनल सॉन्ग ही होता है। तो मुझे इस टैग के बारे में तो पता नहीं कि प्रमोशनल सॉन्ग क्या होता है और क्या नहीं होता है, बट हाँ, ये गाना बेहद मतलब हैप्पी का जो किरदार है उसको एक मज़ेदार तरीक़े से ऑडियंस तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ये इस तरह का गाना है, और जाहिर है क्योंकि फ़िल्म का गाना है तो फिल्म में के प्रमोशंस में तो काम आएगा। एज एन एक्ट्रेस डायना को आप किस तरह देखते हैं और डांसर के तौर पर? देखिए, मेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप उनके साथ बेहद बेहतरीन रही है इस फिल्म में, और मैं समझता हूँ कि जितनी हार्ड वर्किंग वो हैं और जितना वो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हरप्रीत कौर जो है हैप्पी, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से काफ़ी दूर का किरदार है, यू नो। तो उस किरदार के लिए एक्टर को एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये अपने आप में एक सबूत होता है उस एक्टर के प्रोफेशनल और कम्पिटिटिव होने का कि वो इस तरह की स्क्रिप्ट का चैलेंज एक्सेप्ट करे और फिर उस पर खरा उतरने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है बड़ी मज़ेदार एक्टर हैं और शी हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ हर इंशाल्लाह। सर, आजकल फिल्में आजकल लीक हो जा रही हैं, पायरेसी का बहुत। जी 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 हैप्पी भाग जाए के लिए जी आपने किस तरह की तैयारी की? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िल्म मेरी हो, किसी और की हो, चाहे ग्रेट ग्रैंड मस्ती हो या उड़ता पंजाब हो या हैप्पी भाग जाएगी हो, हम सब
एक इंडस्ट्री है, एक फ्रेटर्निटी है। तो मेरा ख्याल है कोई एक फिल्म अपने लिए कोई प्रिकॉशन ले ले, मुझे नहीं लगता कि हमारी फ्रेटर्निटी इस तरह काम करती है। जो किसी और फिल्म के साथ हुआ वो किसी भी और फिल्म के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि फिल्में बनती हैं ताकि आप लोगों का मनोरंजन कर सकें, वो आपको एक पर्टिकुलर माध्यम तक पहुंच सकें, और ज़रूरी होता है कि उसको इतना चांस तो दिया जाए कि वो उस माध्यम से बाहर आए कम से कम, है ना। बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब आप ही के सोसाइटी का वॉचमैन आपकी फ़िल्म मोबाइल पे देख रहा होता है ना। तो यही कहूँगा कि जो अभी 2-3 रोज़ पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि साजिद भाई एंड मुकेश जी केम टुगेदर एंड बिकॉज डिशुम वाज राउंड द कॉर्नर and they came up with the encrypted hard drive procedure for negating any possibility of any leak. इंशाल्लाह हम भी वो फॉलो करेंगे और यहाँ से आगे सभी करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी शख्स जो ये इस तरह की चीज़ अपने एक ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहा हो, वो इस बात को समझे कहीं डीप डाउन कि ये चोरी है और सिर्फ चोरी है, इसको आप कोई और नाम नहीं दे सकते। हमने इसको बड़ा खूबसूरत सा अंग्रेज़ी नाम दिया हुआ है, पायरेसी। दरअसल ये थेफ्ट है, इसको हिंदी में चोरी कहते हैं। इसमें आप किसको जिम्मेदार हैं? नहीं, जिम्मेदार तो वो पर्टिकुलर शख्स होता है, देखिए जो ये उस वक्त कर रहा है ना, वो शख्स कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान का कोई शख्स हो सकता है, वो सेंसर बोर्ड का कोई शख्स हो सकता है, वो किसी और बोर्ड का कोई शख्स हो सकता है। वो अलॉन्ग एक फिल्म की जर्नी बड़ी लंबी होती है, जब तक वो एडिट से निकल के आप तक पहुंचती है तब तक कई लोग उस फिल्म पे काम करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। तो कोई डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये उस व्यक्ति विशेष की गलती है जो उस वक्त जिसका ज़मीर गवारा करता है कि वो ऐसी हरकत कर जाए। अब वो व्यक्ति विशेष किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, तो यू कांट प्लेस अ ब्लेम ऑन एनीबडी, यू नो। Thank you so much. Thank you. God bless you.